वंदे मातरम। स्वतंत्रता का पर्व है, आजादी का जश्न है। स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 73 साल पहले आजादी पाने के बाद जिस स्थान पर तिरंगा फहराया गया था, वही स्थान आज फिर प्रतीक्षारत है, जब माननीय प्रधानमंत्री यहां आएंगे, ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। Namaskar. From the historic Red Fort, heartfelt Independence Day greetings to every Indian living not only across the length and breadth of this proud nation, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world. निखरा निखरा सजा धजा पूरा इलाका। हमारे राष्ट्रीय पर्व की छटा चारों ओर बिखरी हुई है। आज 15 अगस्त की सुबह एक अजब सा एहसास है। आजादी की सालगिरह का ये मौका बड़ा खास है। From the rallying cries of Swaraj is my birthright and I shall have it by Bal Gangadhar Tilak and Do or Die while launching the Quit India movement by Mahatma Gandhi to today, the 15th of August 2020, India has walked a path from dependence to independence in many spheres and then from independence to interdependence in numerous others. As we come together today, physically, digitally or emotionally, we not only celebrate our achievements, resilience and collective strength to face adversity, but also to recognize and reflect on the challenges that lie ahead to make independence truly meaningful for every Indian. आज बाधाओं और चिंताओं पर उल्लास भारी है। आशंकाओं को त्याग कर अपना पर्व मनाने की तैयारी है। कोविड-19 कोरोना महामारी के समय में भी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपने हर दायित्व को निभाना है, लेकिन पूरी तरह से सावधान, सतर्क और चौकन्ने रहकर। आज मन में इस पावन दिन का सत्कार है और उन देशभक्तों का स्मरण भी है और उनको नमन भी, जिनके प्रयासों से देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और हमने आजादी पाई। Today, we foreground history, hope and our home, a land that has held patiently and protectively in its embrace a civilization that is as dynamic as it is diverse, as ancient as it is modern, as simple as it is complex. With color, culture and creativity, her glorious ornaments, she entices, allures and inspires our reverence. Vande Mataram. 15 अगस्त यानी हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारा राष्ट्रीय पर्व। देश के 74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किला परिसर में हर तरफ उल्लास और उमंग का माहौल है। आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आने वाले कल की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और देश को संबोधित करेंगे। आधुनिक भारत के दृष्टिकोण से वर्ष 2019-20 बेहद खास है, क्योंकि इस दौरान हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और उनके आदर्शों को याद कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र संबोधन से पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। Nation building can have varied lenses. The power of being one, the empowerment of everyone, or the exclusion of no one. Whichever way we look at it, all become important against the backdrop of National Day celebrations. In fact, long after the spoken word has dissolved into time and space and exited our cognitive memory, it is the power of our visual experience that resonates in our recollections. The joy of celebration and the colors of independence will be captured by technology today to inspire our spirit of oneness. Elaborate and detailed arrangements have been made by Doordarshan for a seamless direct telecast of the celebration at Red Fort.
Today, we progress, prosper and pray in an independent country. The tricolor flutters in our hearts, homes and hopes. Our freedom and coming together as one nation was made possible by the courage, grit and determination of all those who fought to free and unify this land. The cause of independence and democracy is important for individual and collective voices to be heard and coexist with respect. And of course, this cause is well served only if we walk the talk, in the small things we do, in the opinions we hold, and the choices we make. And here at Red Fort, a sense of anticipation in all present, the picture-perfect stillness of this imposing symbol of self-rule, always a source of admiration. हमारे आज़ादी का पर्व, हमारा स्वाधीनता दिवस। एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद भारत ने आज़ादी का सवेरा देखा। आज की सुबह उसी गौरवशाली और ऐतिहासिक पड़ाव की याद दिलाती हुई। हमारा 74वां स्वाधीनता दिवस इस बार समारोह कुछ अलग अलग सा है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पर असर डाला है और ऐसे में नई चुनौतियां हमारे सामने हैं और किसी भी देश की शक्ति इस बात में निहित होती है कि वो अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करता है। पिछले कुछ दशकों में मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के नए नए आकाश तलाशे हैं, तो इसके कारण भी नई चुनौतियां अब सबके सामने हैं। हमारा देश निश्चिंत है कि हमारे देश की सीमाएं उसके जांबाज सैनिकों के शौर्य और वीरता के कारण सुरक्षित हैं। किसी भी चुनौती का भरपूर जवाब देते हैं हमारे वीर सैनिक। भारत की आन बान और शान। हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता कि हवा चल रही होती है, ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहरता है जो इसकी रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय सेना यानी शौर्य, पराक्रम और गौरव की निशानी। भारत जहां हर जन के मन में देश प्रेम की भावना सर्वोपरि है। ये वो राष्ट्र है जहां देश प्रेम सैनिकों की धमनियों में रक्त बनकर दौड़ता है। धरती और आसमान के बीच हर जगह मौत के खौफ से बेपरवाह सैनिकों ने अदम्य साहस और अपनी असीम वीरता से देश की एकता और अखंडता कायम रखी है। बुलंद हौसला, मातृभूमि के प्रति समर्पण और अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना का रण कौशल अद्भुत है। समुद्र की उफनती लहरों के बीच जोश, जुनून और जज्बे के साथ बेहतर रणनीति और मुश्किल हालात में भी विजय का शंखनाद करने की आदत का कोई सानी नहीं है। ऐसा साहस,
ऐसी बेजोड़ वीरता जिसकी ऊंचाइयां आकाश की सीमाओं से पार जाकर दुश्मनों को चारों खाने चित कर देती हैं। तकनीकी स्तर पर उन्नत, व्यूह रचना के स्तर पर बेहतरीन और युद्ध के मैदान में शत्रुओं की आंखों में आंखें डालकर नेस्तनाबूद करने का लक्ष्य। ऐसा है भारतीय सेना और इसके शूर वीरों का पराक्रम। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। We have and always will be proud of our men and women of the armed forces. With a strength of over 1.4 million active personnel, the Indian Armed Forces constitute the world's second largest military force, and their commitment to duty, discipline and diligence on display here at Red Fort. With the two Guard of Honours having taken their position, one right across the ramparts, which is the General Salute Guard of Honour. The National Flag Guard is there, which will present the National Salute. And on the right of the dais, we have the General Salute, Inter-Services and Delhi Police Guard of Honour. लाल किले के सामने सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल। सीसगंज गुरुद्वारा, गौरी शंकर मंदिर और ये लाल जैन मंदिर। ऐसे दृश्य हमारा विश्वास इस बात में दृढ़ करते हैं कि भारत सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। और लाल किले के बाईं ओर सामने ऐतिहासिक जामा मस्जिद और लाल किले के सामने ये आर्य समाज मंदिर। हर धर्म का सम्मान, सभी के लिए स्थान, और यहीं पर बैप्टिस्ट चर्च भी है। Our camera is specially positioned to show you complete diversity and unity. This is the street right across the ramparts, Chandni Chowk, where we have places of worship from different religions. लाल किले के सामने से जो सीधी सड़क चांदनी चौक होती हुई सामने फतेहपुरी तक जाती है, वहीं सामने फतेहपुरी मस्जिद है। और ये आर्य समाज मंदिर। And here back at Red Fort, this is the view directly from across the moat. You can see right in front of you. We have the main dais from where in a short while from now we expect the arrival of Prime Minister Narendra Modi, who will unfurl the national flag and address the nation
This is a shot of the VIP enclosure. As we can see, complete social distancing and all the norms being adhered to. And these are two enclosures on either side of the dais. भारत देश विशाल है। विविधता और अनेकता में एकता हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही साथ देश के सामने चुनौतियां भी बहुआयामी हैं और आज की तारीख में हमारे देश और सारी दुनिया को कोरोना महामारी के रूप में ऐसी ही एक बेहद जटिल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन चुनौती को अवसर में बदलने का उदाहरण पेश करते हुए भारत ने कोरोना महामारी का जिस कौशल और योजनाबद्ध तरीके से सामना किया है, सारी दुनिया आज उसकी कायल हो रही है। कोरोना महामारी एक संकट, एक चुनौती या इन सब से भी बढ़कर एक लंबा और कठिन संघर्ष। कोरोना की जद में आम भी हैं और खास भी, विकसित देश भी हैं, विकासशील देश भी। कोविड-19 के सामने दुनिया के कुछ देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गईं, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे लड़ने का रास्ता दिखाया। घनी आबादी में संक्रमण के बहुत तेजी से फैलने की आशंकाओं के बीच भारत ने कुशल प्रबंधन, बेहतर रणनीति और कभी न हार मानने वाले जज्बे से कोरोना से निपटने की दिशा में कई स्तरों पर मिसाल कायम की है। प्रति 10 लाख लोगों में संक्रमण के मामले हैं या फिर मृत्यु दर, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां ये आंकड़ा वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर और दिन प्रतिदिन कोविड टेस्ट की बढ़ती संख्या ने इस महामारी को देश में बेकाबू होने से रोक लिया। लॉकडाउन की परेशानियों के बीच सरकार हर उस व्यक्ति के साथ एक अभिभावक की तरह खड़ी रही जिसे जरूरत थी। प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष व्यवस्था की, करोड़ों परिवारों तक राशन पहुंचाया, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की और 7 समंदर पार फंसे भारतीयों के लिए भी अनुपम प्रयास किए। इस संकट में हम सब स्वस्थ और सुरक्षित रहें, इसलिए कोरोना वॉरियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। सलाम उन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को जो अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड मरीजों को एक नई जिंदगी देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सलाम पुलिस कर्मियों को जो व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सलाम स्वच्छ भारत के प्रहरियों को, आवश्यक सेवा में योगदान देने वाले लोगों को और उन तमाम देशवासियों को जिन्होंने इस विपदा के समय खुद से पहले समाज और देश की जरूरतों को प्राथमिकता दी। On days like today, when we talk of what makes us strong and resilient and remember sacrifice made in national interest, we need to recognize and salute thousands who, while quietly doing their duties, were at the forefront of helping India cope with the COVID-19 pandemic and facing the COVID challenge. Patriotism lives not in waving the flag but in striving to serve with courage. And here we see, as our camera pans, we have 500 young NCC cadets from its 3 wings across the ramparts. And this is where the special invitees, diplomats and dignitaries, and here of course we have the members of the government sitting. कोरोना के दौर में अब जब सारी दुनिया स्वच्छता का पाठ भी पढ़ रही है और सीख रही है कि स्वच्छता से कितनी ही बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं, बापू ने हमें ये पाठ वर्षों पहले पढ़ाया था।
और जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बदले हुए माहौल में अब कोई भी आयोजन या समारोह पूरी सावधानी बरत कर ही किया जाता है। हर समारोह को भव्यता के साथ मनाने की हमारी परंपरा है, लेकिन अब आज के समय में एहतियात भी ज़रूरी है। और वही आज यहाँ लाल किले पर, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सभी मास्क पहने हुए और ये लाल किले की प्राचीर के सामने एनसीसी कैडेट्स तिरंगे के रंगों में सजे हुए। Today's celebrations reaffirm the strength of Indian democracy. This is a moment of renewed hope and pride for the whole nation. India, an ancient civilization, young in its people, a country full of vitality, constantly growing and renewing. भारतीय स्वाधीनता संघर्ष की कहानी अपने आप में सारी दुनिया के लिए मिसाल है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को अनुकरणीय नेतृत्व मिला था शांति के मसीहा, साबरमती के संत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में, जिनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों और सत्याग्रह के अनोखे हथियार ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया और हमें आजादी में दिलाई। सारी दुनिया के सामने त्याग, बलिदान और संयम के प्रति सच्ची श्रद्धा की अनोखी मिसाल कायम करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी बेहद प्रासंगिक और अनुकरणीय हैं। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मोहनदास करमचंद गांधी, जितनी सरल छवि उतना ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। गांधी जी ने अपने अनुपम संकल्पों और अनूठे उपायों से स्वतंत्रता संघर्ष में देशवासियों को एकजुट किया और राष्ट्र के स्वाधीन होने में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी के जहन में एक सपनों का भारत था। आजादी के 74 साल बाद देश उसी रास्ते पर आगे बढ़कर बापू के सपनों को साकार करने की कोशिश में लगा है। गांव और ग्रामीण गांधी जी के विचारों के केंद्र में थे। आज ज्यादातर सरकारी योजनाओं के केंद्र में भी यही है। मौजूदा सरकार ने ग्राम उदय से भारत उदय योजना से गांधी जी की सोच को सच कर दिखाया। स्वच्छता को बापू ने स्वतंत्रता से भी जरूरी बताया था। उनके अनुसार स्वच्छता ही सेवा है। 6 लाख से ज्यादा गांवों का खुले में शौच मुक्त हो जाना, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण होना और पिछले 5.5 सालों में स्वच्छता के प्रतिशत में कमाल की वृद्धि होना ये दिखाता है कि पूरा देश बापू की राह पर आगे बढ़ रहा है। गांव हो या शहर, हर जगह रहने वाले व्यक्ति को बापू आत्मनिर्भर बनता देखना चाहते थे। आज स्किल इंडिया के सहारे हर हाथ को हुनर देने की बात हो या मुद्रा योजना के सहारे लोगों को खुद का व्यापार करने के लिए प्रेरित करना हो, इन सब के पीछे की सोच बापू के सपने को साकार करने की है। चरखे पर सूत काटना हो या फिर खादी को जीवन का हिस्सा बनाना हो, गांधी जी इन सबको स्वावलंबन के साथ ही साथ परंपरा के साथ भी जोड़कर देखते थे। नदियों को देश का नक्शा मानने वाले बापू इन्हें प्रदूषण मुक्त करने पर बहुत ध्यान देते थे। आज नमामि गंगे जैसी पहल उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। बापू के भारत में हर किसी के लिए खुशहाली है और बहुत जल्द ये सपना पूरा होने को है।
Every year, as Independence Day gets foregrounded in our collective present, we remember our heroes, the legacy of a great name and the inheritance of a great example. With his principled stances on truth, brotherhood and non-violence, Mahatma Gandhi, the father of our nation, stands out as a unique example of quiet courage and strength. The 15th of August has and always will be a day of gratitude for all those pre-independence freedom fighters who ensured that the freedom struggle became a mass movement, to all those sung and unsung visionaries post-independence who took the country forward to make independence sustainable. 15 अगस्त का दिन हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी हर भारतीय के लिए गौरव और संकल्प का पर्व है। विशिष्ट दर्शक दीर्घा जहां पर लाल किले की प्राचीर के समक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित और ये विहंगम दृश्य सम्मान गारद का, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जोशीले जवान उपस्थित हैं अपने निर्धारित स्थान पर। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे और उसके पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, देश का कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। आज़ादी का ये पावन पर्व मनाने का अवसर मिले, इसके लिए हमारे देश के हजारों स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को एक सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर भारत का उदय हुआ और इसके साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके 73 वर्ष हमने पूरे कर लिए हैं। So we have two guard of honors positioned here. One is of course across the ramparts and the other is towards the Lahori Gate side. The 15th of August, an august day in more ways than one, as the flavor of freedom and celebration dominate our day. The magnificent Red Fort, looking all dressed up today too, to celebrate with us. This is the Guard of Honor right across the ramparts, which is also the National Flag Guard, which is under the overall command of Major Surya Prakash. तिहत्तर वर्ष पहले 200 साल की गुलामी के बाद हम आजाद हुए थे। बहुत लंबा संघर्ष चला, कितनी ही पीढ़ियों ने कुर्बानियों की एक श्रृंखला बना दी। आजादी के कितने ही मतवाले गुमनाम हैं और कईयों को हम जानते हैं। आजादी की पहली लड़ाई जो बड़े स्तर पर लड़ी गई सन 1857 में, उसने अंग्रेजों को हिला दिया था और डरा दिया था, और धीरे धीरे देश के कोने कोने से जब आवाज उठी तो उस गर्मी में गुलामी की बेड़ियां पिघल गईं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। And today we do more than just observe tradition and ceremony. We reconnect ourselves to the very idea of India, an idea born in the deepest meaning of the word unity, nurtured by its myriad diversity and sustained by a conviction that India's progressive journey forward must go on. Swami Vivekananda said that every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. The mission of India has been to guide humanity. And days like today are symbolic in many ways
for all of us when we shine the light of what our country stands for inwards and also reflect on how we use them to guide our actions. With equity, parity, and universality being critical for India's growth. And here under the 7 minarets right at the top of the ramparts are inter-services buglers who periodically mark time and of course will also herald the arrival of Prime Minister Narendra Modi when he reaches Red Fort after paying reverence and his respects at Rajghat at the Samadhi of Mahatma Gandhi. In fact, reverence and gratitude are feelings that do more for the vessel they are stored in than for the vessel they are poured in. They fill our hearts with something that is far bigger than us. Today, we bow our heads in respect, but stand tall with pride, knowing that we belong to a nation where brave men and women will always come up front to fight for freedom and liberty, social, economic and political. लाल किले के प्राचीर के सामने के ये दृश्य और राजघाट जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बापू ने संपूर्ण मानव जाति को अहिंसा का वो अनोखा और अविस्मरणीय संदेश दिया था जिसकी दुनिया आज भी कायल है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन राजघाट पर देश का कृतज्ञता ज्ञापन राष्ट्रपिता के प्रति। At Rajghat, live images of Prime Minister Narendra Modi reaching there to pay his respects. Offerings of reverence and gratitude. Though our paths may be different, our hearts need to be one. Though beliefs may be different, our destination is one. The flame of truth and non-violence glowing strong. After paying his respects at Rajghat, the Prime Minister will now arrive in a short while from now at Red Fort for the flag hoisting and national address. बापू को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी जिनका जीवन ही उनका संदेश है। बापू ने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। वो चाहते थे कि सदियों से जैसे हमारे गांव स्वनिर्भर रहे हैं वैसा ही हमारा देश बने। बापू के स्वच्छता के विचार को अपनाकर देश ने थोड़े ही समय में स्वच्छ भारत की छवि दुनिया भर में प्रस्तुत की है। अब देश में उत्पादन के दायरे को बढ़ाकर उसे एक नए स्तर तक ले जाना है। ये लक्ष्य है एक ऐसे भारत का जो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके। खुद पर भरोसा, दुनिया भर में छा जाने की ललक और लोकल से वोकल का मंत्र। कुछ ऐसे ही बढ़ रहा है देश आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर। कोरोना संकट के इस दौर में हर एक देशवासी के सपने को साकार कर उसके चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशहाली लाने का ही नाम है आत्मनिर्भर भारत। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ
सभी पर ध्यान दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, लघु और मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। सही मायनों में यही आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। संकट के समय में लोकल ने ही हमें बचाया है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। जीवन और मौत के बीच जूझ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई जिंदगी की आशा लेकर पहुंचती हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी देश के सामान का आयात बंद कर दें। इसका मतलब है कि अपनी क्वालिटी और ब्रांडिंग इस स्तर की करनी है कि लोग बाय चॉइस उसे ही खरीदें। भारत की संस्कृति और संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। आज हमारे पास साधन है, दुनिया का बेहतरीन टैलेंट है, तो हमें किस चीज का इंतजार है? यदि हमें किसी का सहारा लेना है तो हमें अपने अंदर छिपी योग्यता, अपने मनोबल और अपने आत्मविश्वास का लेना है, क्योंकि उससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और आत्मनिर्भर व्यक्ति के लिए सफलता के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। Freedom is not only about independence from foreign rule. In fact, freedom is the chance to do better, be better. In the words of the Buddha, no one saves us, no one can, no one may. We ourselves must walk the path. And for any nation, self-reliance is a critical milestone on that path. India has consistently been walking that path, going from strength to strength. And that's why today, as we breathe in this air of independence, we live in a free country. With generations of Indians never having lived as subjects of a foreign power. Freedom for us is a non-negotiable, something we take for granted as being there. Today, however, allows us to reflect on how this freedom was envisioned. And here at Red Fort, the arrival of the Prime Minister. लाल किले की भव्य पृष्ठभूमि और लाल किले की प्राचीर के सामने लाहौरी दरवाजे के निकट आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री के आगमन पर उनकी अगवानी की जाएगी और वे गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे।
Prime Minister Narendra Modi's carcade arrives at the Lahore Gate side. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी लाल किला परिसर पर। आज जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, साथ में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, जिनका परिचय कराते हुए दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से माननीय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का कुछ ही समय के उपरांत निरीक्षण करेंगे। जनरल सैल्यूट, सलाम, चेस्ट। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, बाजब, चेस्ट। अब माननीय प्रधानमंत्री जी परेड का निरीक्षण। श्रीमान, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। बड़ी ही The Guard Commander Lieutenant Colonel Gaurav S. Yuvalkar requesting the Prime Minister to inspect the ready Guard of Honor. And as the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister moves now towards Lahore Gate, the entrance of the central courtyard of Red Fort, from where he will go up to the ramparts to unfurl the national flag and address the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लाल किले का भव्य और विशाल लाहौरी दरवाज़ा, जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट। यहीं से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। अब तो यहाँ लिफ्ट भी है। पहले जब लाल किला बनवाया गया था तब प्राचीर यहाँ नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy the power and responsibility that comes with freedom, the life force of democracy. The Prime Minister will now go up the lift to the first level of the ramparts. And as the Prime Minister will once again address the nation, the country's response and participation to the changing domestic and international dynamics will be foregrounded. The unfurling of the national flag will be accompanied by the 21-gun salute, presented by the gunners of the elite 2233 Field Battery Ceremonial, under the command of Lieutenant Colonel Jitendra Singh Mehta. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत लाल किले की प्राचीर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा उनके साथ में उपस्थित। प्राचीर की ओर प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री
अपने दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार और लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्राचीर के ठीक सामने का क्षेत्र जहां पर राष्ट्रीय ध्वज गारद के जोशीले जवान मौजूद हैं, विशिष्ट दीर्घा जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, विदेशों के राजदूत आज के इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने के लिए सभी यहां पर उपस्थित हैं। India is not just a nation state. It has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. लाल किले के सामने सर्वधर्म समभाव की तस्वीर, जैन मंदिर, उसके पीछे गौरी शंकर मंदिर और उसके आगे गुरुद्वारा सीसगंज। Faith, belief, trust, tradition. लाल किले के बाईं ओर जामा मस्जिद। In fact, tradition, philosophy, ideas, and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design in India. Tolerance, inclusivity, and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. Dissent has made us progress. Collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. The task of freedom and the taste of freedom rests sweet on days of celebration. Defence Minister Shri Rajnath Singh. India's dream of becoming an independent nation after years of colonial rule came true on the 15th of August 1947. At the stroke of midnight, India began its journey as a free country. And today, as the largest democracy in the world, we are positioned and poised to continue forward. आज के समय में बदले हुए व्यवहार से हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। ये न्यू नॉर्मल है, नया सामान्य व्यवहार। आज के समय में ये बदला हुआ व्यवहार बेहद जरूरी है। मुश्किलें सदा नहीं रहती, उनकी सीख रह जाती है। ऐतिहासिक लाल किला और उसकी प्राचीर, जहां से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होगा और वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। And here we are at this grand red sandstone fortress, the Red Fort, without doubt the centerpiece of our Independence Day celebrations. हमारे राष्ट्रीय पर्व का साक्षी बनने के लिए विदेशों के राजनयिक पदाधिकारी भी आज यहाँ लाल किला परिसर में विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य आज के इस समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस समारोह को पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। ऐतिहासिक लाल किला जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास की तमाम गाथाएं अपनी दीवारों में अंकित किए हुए है। इस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला, भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, देशभक्तों का जुनून, 1947 की आज़ादी और उसके बाद विकास के पथ पर आगे बढ़ता भारत, जैसे सब कुछ लाल किले की दीवारों पर अंकित है। हमारे विशेष कैमरे से ये विहंगम दृश्य लाल किले के परिसर का और उसके ठीक सामने के स्थलों का, जहां पर 74वां स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है और प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गारद, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के दस्ते मौजूद हैं। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं थल सेना के मेजर सूर्य प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन होता हुआ राष्ट्र के संबोधन के लिए